your IT teacher. I welcome you on my YouTube channel. स्टूडेंट्स, जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो में आपने एक नए चैप्टर के बारे में पढ़ा. द नेम ऑफ द चैप्टर इज रिट्रीविंग योर डेटा यूजिंग द क्वेरी. So that was the part 1, and in today's class we are going to have the video related to your part 2, that is your next video, right? So students, I am just going to have this with detailed practical demonstration about the few of the topics, but you have to watch it carefully, and if you feel that you have any kind of doubt, definitely you can get in touch with me. So students, now I am going to start this video, and in this video what topic we are going to have this is the list for this. In the previous video we have covered introduction, query, creating query using the query wizard, next one creating query in design view, and editing a query. These topics are already finished. Now in this video we'll try to finish out these two things, applying criteria in a query, and then after performing calculations. We'll have the detail about this, right? Now students, in the previous video I have already told you that we can apply the query on single field, multiple field, or you can also use this by using your wildcards also. Okay, so now we are going to understand about how we are going to apply the criteria, okay, on the single field. Let's have the practical demonstration of the same. So I'm going to minimize it. Let's open the next thing, that is your database. So earlier I have used this one. Let me close this. It is asking for to save this file. I'm going to click on no. Now it's finally closed it. Now double click on this student database by using the LibreOffice base. Now once it is clicked on that, then we are going to perform the next one. So for applying the criteria in a query, first of all please ensure that your table must be created, right? Once the table is created, then you can also create your relationship very easily. But in the relationship, please ensure that in between of two tables, the both tables should have the common things, because if the common thing is not there, common attribute is not there, you are unable to create the same, unable to create the relationship, right? Now students, what I'll do here, I'm just going to create one query, okay, by using the two tables. Okay, so for creating a query, I'm going to use the creating a query design view. Okay, so I'm just going to click on double click. Now this is your relationship pane, this is your design grid. Now I'm going to take two tables. First one is student info, add, and second one is student fees, and then add, and then close it. So I have made a table here so that it will save some of the time. Okay, if you want to have the relationships, drag like this and leave it here, your relationship is made. Now first of all we are going to understand how we are going to create the criteria which is based on a single field. Okay, so let's take some of the fields here. First, this is your student ID, then after this name, then after class. Okay, by clicking on field option you can have the different attributes, right? So by using that attributes you can have the different things, right? So according to this I'm going to take only three things. Okay, I'm going to take only three things: student ID, name, and here I'm going to take this likewise total. Let me see where is the total is. Okay students, now I have changed the table here. I have taken here student marks. Let me brief you.
earlier the different table is there, student fees is there, but I thought that this table is more give you the understandability. Okay, that's why I have taken the new table, right? Okay, so now I have selected the field here, SID, that is student ID, name, total, and these are the name of the table. Visibility I have shown here. Now come to the criteria. Suppose I want to see that how many students are getting more than 300. So let's use like this. I have put a greater than sign here and then write here 300 and then press enter. Now once it is done, now I have to click on run query. See, you are able to see here that only that student are filtered here who are getting more than 300. Okay, this is the data. So I hope you are able to understand that how you are going to apply the criteria on the single field. Okay students, so this is the way through which you are able to understand to apply the criteria. Okay, now coming to the next thing, that how we are going to apply the criteria for multiple fields. Okay, for multiple fields. So right now I am going to change the table here. Let's delete it like this. Make a right click, just right click like this, delete. Okay, now for adding a table, this is the button here, this one, add table. Now I am just going to take student fees and then click on add and then close it like this. Okay, now for making the relationship you have to do like this. Now the relationship is made here. Now take the table here and then after that whatever the attribute you want to select, that you have to made it. Okay, so first of all I have taken here SID, name. Suppose I have taken here father's name. Where is father's name? This one. Then after I have taken mother's name. Then after I have taken city, and finally I have taken fees and status. This is fees. Where is fees? Fees and then status. So finally I have taken these attributes and these are the tables which is correspondingly views here. Now I have to mark here the how many things, how many criteria you want to implement, multiple attributes you want to use. Okay, right now we are in डिज़ाइन व्यू, हम इस समय डिज़ाइन व्यू में हैं और डिज़ाइन व्यू में रहते हुए हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमें मल्टीपल फील्ड्स पर क्राइटेरिया अप्लाई करना है तो कैसे अप्लाई करें. ठीक है, जैसे मान लेते हैं मुझे क्राइटेरिया वाले कॉलम पे इस जगह पर मान लेते हैं मैंने कहा मुझे उन बच्चों के नाम चाहिए जो केवल दिल्ली में रह रहे हैं, दिल्ली में रह रहे हैं. ठीक है, आई हैव प्रेस इंटर. आपको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा, केवल आपको टाइप करना है, सिंगल कोटेशन मार्क अपने आप आ जाएगा. ठीक है, इन केस नहीं आता है तो आप लगा सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क आपको अपने आप मिल जाएगा ये. ठीक है, अच्छा. और एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर जितने भी काम कर रहे हैं कोई कमांड वगैरह आपको याद नहीं कर रहे हैं, बस आपको ये याद होना चाहिए कहाँ पे आपको टाइप करना है, कहाँ पे आपको क्लिक करना है ये. ठीक है, तो आपको ध्यान दिया कि सिटी है, यहाँ पर सिटी के ठीक नीचे क्राइटेरिया वाले रोग में मैंने लिख दिया दिल्ली. अब स्टूडेंट की जो फीस है वो भी हम चेक कर लेते हैं. मैंने कहा दिल्ली में केवल उन्हीं बच्चों का चाहिए जिनका फीस पेड है, तो मैंने यहाँ लिख दिया पेड. ठीक है, मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर पेड. तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो टेबल बनाई गई है उस टेबल में स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन, नेम, फादर्स नेम, सिटी, फीस सब कुछ है. ठीक है, मैं एक काम करूँगा, इस क्वेरी को रन करने के बाद मैं आपको दोनों ही टेबल आपको व्यू करा दूंगा, दिखा दूंगा आपको मैं. ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें हो गई. अब हम क्या करने जा रहे हैं, रन करने जा रहे हैं, देखते हैं हमारा डेटा आता है कि नहीं आता है. इस समय देखिए डेटा आपका नहीं आया, इट मीन्स वी हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक हियर. ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू व्हाट मिस्टेक आई हैव डन हियर. In the table I have written paid. The spelling is capital P A I D. This is the spelling I have used here, but by mistake I have written a small p here. That's a different thing. You have to use the
exactly same name of the content which is used in table, right? Okay, now finally I have clicked here paid. Okay, then you are able to see the particular data here. So right now the criteria is applied on the 2 fields here. You can apply more than 2 also. Suppose I want to write here unpaid, so I have to write like this, unpaid. Now let's see we will have the answer or not. See, you are able to see here only 2 students belongs to Delhi and their fees is still pending. Okay, so right now this is the way to apply the criteria on the multiple fields. Now students, we are going to have the how to use the criteria using the wildcards. Okay, so first we are going to understand about what is wildcard. Wildcard क्या होता है ये, चलिए देखते हैं, समझते हैं इसको. देखिए वाइल्ड कार्ड, दे आर द स्पेशल कैरेक्टर्स. क्या है ये? दे आर द स्पेशल कैरेक्टर्स. जैसे @ होता है, परसेंटेज, सब आपके स्पेशल कैरेक्टर होते हैं. ये स्पेशल कैरेक्टर दैट आर यूज टू सब्स्टिट्यूट फॉर 1 or more कैरेक्टर्स इन अ स्ट्रिंग. ठीक है, कई सारे कैरेक्टर्स को क्या कर सकता है वो, रिप्लेस कर देगा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, केवल एक को भी कर सकता है ये. ठीक है, इसका यूज हम अभी सीखेंगे यहाँ पर जब हम क्राइटेरिया का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे आगे हम. फिर इसके बाद एडवांटेज देखिए इसका क्या क्या एडवांटेजेस हैं. दीज आर हेल्पफुल फॉर लोकेटिंग मल्टीपल आइटम्स ऑन द स्पेसिफाइड पैटर्न मैच बट नॉट आइडेंटिकल डेटा. मतलब क्या हुआ, जब आप वाइल्ड कार्ड यूज करेंगे तो कई सारे डेटा आप व्यू कर सकते हैं, डिस्प्ले करा सकते हैं जो उस पैटर्न से मैच करेगा, जो उस स्पेशल कैरेक्टर से मैच करेगा, जो पैटर्न आप देंगे आप. ठीक है, यूजिंग वाइल्ड कार्ड यू विल इंक्रीज द सर्च रिजल्ट. ठीक है, यानी कि जब आप वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं आप, तो जो सर्च रिजल्ट है यानी कि जो सर्च करने का तरीका है वो आपका तरीका बढ़ जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा ये. ओके, okay, till now we have understood about what are wildcards and what are their advantages, right? Okay, so students, as you know that we have to also study about what are the different use of wildcards. Okay, so right now as you see the screen here, there are several kinds of wildcards. Wildcard means special characters that are used while creating the criteria, right? So percentage, star, underscore, question mark, square bracket, this is the name of caret. Okay, this symbol is known as caret and this is the dash. Okay, these things are special character which are used for creating the criteria while you are using the query. Okay, okay, so let's have to understand about what is percentage and star. When you are using the asterisk sign or star sign or percentage sign, okay, anywhere in the string, it means that you are going to represent 0 or more characters. अगर आपने स्टार लगा दिया या परसेंटेज लगा दिया, इसका मतलब आप यहाँ पर 0 कैरेक्टर या मोर कैरेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, आपने लिखा इन स्टार, मतलब इन से स्टार्ट होने वाले जितने भी शब्द हैं वो आपके यहाँ पे काउंट हो जाएंगे, वो आपके आ जाएंगे. इन परसेंट लगाया तब भी आपको वही आंसर मिलेगा. ठीक है, इफ आई पुट अंडरस्कोर और क्वेश्चन मार्क, देन व्हेन यू आर यूजिंग दिस कैरेक्टर इट मीन्स दैट इट मैचेस विद द सिंगल अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स. मतलब क्या हुआ कि अगर आपने स्टार लगा दिया, सॉरी आपने अंडरस्कोर लगा दिया या आपने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि अब आप यहाँ पर केवल और केवल ये एक सिंगल कैरेक्टर को ही मैच कर रहे हैं. जैसे एग्जांपल में देखिए, लिखा है D_LHI या अंडरस्कोर की जगह क्वेश्चन मार्क लग गया. इसका मतलब यहाँ पे जो सिंगल कैरेक्टर जो मिसिंग है केवल उसको ही वो फाइंड आउट करेगा और आपको रियल आंसर आपको मिल जाएगा. ठीक है, उसको मैच करके. तो यहाँ पर देखिए एक आंसर यहाँ पे है दिल्ली. इफ यू पुट द स्क्वायर ब्रैकेट देन इट मैचेस एनी सिंगल कैरेक्टर विद इन द ब्रैकेट. ब्रैकेट के अंदर जो भी कुछ लिखा रहेगा किसी भी कैरेक्टर को वो कंपेयर करेगा या मैच करेगा वो. जैसे अब आपने लिखा बी, स्क्वायर ब्रैकेट में ए और ई लिखा और बाद में आपने क्लोज करके लिखा LL. इसका मतलब यहाँ पे बॉल हो सकता है या BELL हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ए और ई यानी बीच के जो लेटर्स है ए और ई, इनके अलावा और कोई नहीं होगा.
ठीक है, BILL नहीं होगा, ठीक है, या BULL नहीं होगा, यहाँ पर केवल BA और E ही होगा केवल, ठीक है। इफ आई यूज द कैरेट साइन देन, इसका मतलब क्या हुआ कि A और E के अलावा जो भी बचे हुए हैं उनका यूज वो करेगा। वो जैसे लिखा आपने कैरेट AE स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा आपने, स्क्वायर ब्रैकेट में क्या लिखा आपने, कैरेट AE, ठीक है, ये सिंबल है, ये कैरेट का सिंबल है। ये जैसे यूज करेंगे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर बॉल बेल ये सब नहीं आएगा, इनके अलावा जो बच जाएगा वो आएगा, ठीक है, जैसे बिल हो गया, बुल हो गया, ये सब चीजें आ जाएंगी। अच्छा, अगर आपने यहाँ पर डैश ले लिया तब इसका मतलब ये हुआ, जैसे लिखा है यहाँ पर B, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर A-C ब्रैकेट क्लोज, इसका मतलब ये हुआ कि A, ठीक है, BAD हो सकता है, BD हो सकता है, या BCD हो सकता है यहाँ पर, यानी A से लेकर C तक के कैरेक्टर्स को वो फाइंड अ मैच करेगा, स्पेसिफाई करेगा और फिर इसके बाद आपको देगा रिजल्ट। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इतने सारे आपने वाइल्ड कार्ड्स तो पढ़ लिए, लेकिन हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस वाइल्ड कार्ड, इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज कैसे करेंगे, आपको एक ऑपरेटर पढ़ना पड़ेगा जिसका नाम है लाइक ऑपरेटर। इसका क्या नाम है, लाइक ऑपरेटर। इसकी हेल्प से यहां पर आप जितने भी वाइल्ड कार्ड्स हैं उसको यूज कर सकते हैं। तो इसका यूज क्या क्या है, अगर आप लाइक ऑपरेटर पढ़ रहे हैं इसका क्या क्या यूज होगा, इट सर्चेस फॉर स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ फील्ड। मतलब क्या हुआ, जो आपने सर्च किया, जो भी आपका पैटर्न सर्च कर रहे हैं आप उसको वहां पे पता करेगा और उसके हिसाब से आपको आंसर मिल जाएगा। इट सर्चेस फॉर अ स्पेसिफाइड पैटर्न इन अ फील्ड एंड अ पैटर्न में इंक्लूड रेगुलर कैरेक्टर और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। यानी कि जब वो पैटर्न के जब आप लिखेंगे आप उसमें सिंपल रेगुलर कैरेक्टर्स भी ले सकते हैं या वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को भी ले सकते हैं। लेकिन अब आपको ये चीज जानना पड़ेगा, लाइक ऑपरेटर के साथ हम सबको यूज नहीं करते हैं हम, ठीक है, मोस्टली दो चीजें यूज हो रही हैं यहाँ पर, एस्ट्रिक या परसेंटेज, ठीक है, एस्ट्रिक परसेंट में से एक चीज, और अंडरस्कोर, ये इतनी सारी चीजें आपकी यूज होती हैं। अब आप इस टेबल को देखिए ध्यान से, इस टेबल में लिखा हुआ है लाइक B%, इसका मतलब यहाँ पर जो परसेंट यानी B से जितने भी स्टार्ट होने वाले आपके हैं वो सारा यहाँ पर रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, B पहले होगा और बाकी के जो कैरेक्टर है वो आपके कोई भी हो सकते हैं यहाँ पर। अगर आपने लिखा %E यानी किसी से भी स्टार्ट हो लेकिन एंड E पे हो, यहाँ पे लिखा है परसेंट और यहाँ लिखा है आपने परसेंट, तो यहाँ पर OR लिखा है। OR का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे भी कोई कैरेक्टर हो सकता है पहले परसेंट पे और दूसरे परसेंटेज पे भी कोई भी कैरेक्टर हो सकता है, लेकिन बीच में और होना जरूरी है। फिर आपने लिखा _N%, इसका मतलब क्या हुआ कि सेकेंड पोजीशन, पहली पोजीशन पे कुछ भी हो सकता है लेकिन सेकेंड पोजीशन पे N चाहिए ही चाहिए, और परसेंट मतलब कुछ भी हो सकता है वहां पर, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है A_%_%, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर A से तो स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है, तो इसके बाद सेकंड कैरेक्टर पे कुछ भी आ सकता है। यहाँ पर एक सिंगल जो कैरेक्टर है, यहाँ पर जो 3 कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर किसी भी लेंथ के आ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 3 लेंथ इसकी होनी चाहिए, ठीक है। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इट विल रिटर्न एनी वैल्यू दैट स्टार्ट विथ A से स्टार्ट होना चाहिए, एंड एटलीस्ट 3 कैरेक्टर इन लेंथ, और उनकी जो लेंथ होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, यानी कि A के बाद जो कैरेक्टर आएंगे वो टोटल केवल 3 हो सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा हुआ है यहाँ पर लाइक D%I, इसका मतलब क्या हुआ कि D से स्टार्ट होगा, I पे एंड होगा, बीच के जो कैरेक्टर है वो कुछ भी हो सकते हैं वहां पर, ठीक है। अच्छा, अब हम आपको प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे यहाँ पर कि किस तरीके से इसको हम यूज करना है, हमें प्रैक्टिकली मैं आपको करके दिखा देता हूँ अब मैं, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं ये जो विंडो है इसको मैं क्लोज करने जा रहा हूँ, यहाँ पर ये मैंने इसको बंद कर दिया। अब आपके सामने ये फ्रेश विंडो है आपके पास, ठीक है। अब इस विंडो में अब आपको समझना क्या है यहाँ पर, किस तरीके से हमें लाइक ऑपरेटर के साथ वाइल्ड कार्ड्स आपको यूज करना है, ठीक है, कैसे यूज करना है। चलिए, सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम क्वेरी पे जाएंगे यहाँ पर इस तरीके से। अब यहाँ पर जो टेबल्स हैं उन टेबल को हम ले लेंगे यहाँ पर,
ठीक है, जैसे एक टेबल ले लेते हैं, स्टूडेंट इन्फो ले लिया, ऐड कर लिया, किसे क्लोज कर दिया हमने। फिर इसके बाद अब हम इसी के हिसाब से फील्ड ले लेते हैं हम, ठीक है। कौन कौन सी फील्ड है यहाँ देख लेते हैं। फील्ड में सबसे पहले हम ले लेते हैं SID, फिर इसके बाद ले लेते हैं नेम और एक ले लेते हैं सिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिटी ले लिया यहाँ पर, ओके। तो ये रहा आपका सिटी, ठीक है। चलिए इसी के हिसाब से टेबल ले लेते हैं, ये यहाँ पे हमने क्लिक किया, टेबल अपने आप आ गया। अब हमें क्या करना है, जहाँ पर क्राइटेरिया है, ठीक है, और जिस फील्ड के हिसाब से आप क्राइटेरिया मेंशन करना चाहते हैं वो चीज़। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपने लिखा लाइक, ठीक है। लाइक के बाद जैसे अब मुझे ये पता करना है कि D से स्टार्ट होने वाले जो सिटी हैं मैं, और उसी हिसाब से मुझे डेटा मिले, तो मैंने क्या लिखा D। अब आपको सिंगल कोटेशन मार्क लगाना ज़रूरी है यहाँ पर। D के बाद मैंने लिखा कैपिटल D लिख दिया यहाँ पर, सिंगल कोटेशन पर क्या लिखा मैंने, कैपिटल D लिखा है यहाँ पर, ठीक है। फिर इसके बाद E लिख देते हैं और यहाँ हम बंद कर देते हैं इसको। अभी मैंने कोई भी वाइल्ड कार्ड मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया है, ठीक है। यूज़ करना चाहें तो आप यूज़ कर सकते हैं आप, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर अभी नहीं यूज़ करेंगे हम, ठीक है। अब मैंने इस पर क्लिक किया रन क्वेरी पे, अभी देखिए कोई भी डेटा नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। अब हम वाइल्ड कार्ड का यूज़ करके देखेंगे। यहाँ मैंने लगा देता हूँ पहले परसेंटेज और यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन मार्क लगा दिया। अब दोबारा से रन करते हैं। अब आप देखिए वाइल्ड कार्ड यूज़ करते ही आपको यहाँ पर प्रॉपर आपको डेटा मिलने लगा, और केवल DE से स्टार्ट होने वाले, अगर आपने यहाँ पर कर दिया NO कर दिया आपने, ठीक है। और अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो नोएडा आ गया यहाँ पर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। बट students, if you feel that you have any query, you can definitely WhatsApp me, call me, anyhow just give your doubts to me, okay? It's my responsibility to give the solution to you, okay? So ये रहा आपका यहाँ पर, इस तरीके से अब आपको यहाँ पर सारा का सारा जो मैंने वाइल्ड कार्ड के डिस्क्रिप्शन दे दिए, थोड़ा सा प्रैक्टिकल आपको करा दिया है, और इसको अब आपको अच्छे से और भी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है अपने घर पर आप, ठीक है स्टूडेंट्स। नाउ it's time to move to the next topic, that is of performing the calculations. How we are going to perform the calculations on the tables, okay, by using the query, ठीक है। जो भी टेबल आपने बनाया है उसके ऊपर अगर कैलकुलेशन करना है क्वेरी का यूज़ करके, तो हम कैसे करेंगे ये अब हम समझने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अब थोड़ा सा कुछ ऑपरेटर्स के बारे में आपको बता देता हूँ मैं, थोड़ा सा ऑपरेटर डाल लीजिए आप। जैसे जब आप फंक्शन यूज़ करेंगे तो शुरू में आपको दिखाई देगा यहाँ पर नो फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते हैं। लेट मी शो यू। जैसे यहाँ पे गए, ये देखिए फंक्शन यहाँ लिखा हुआ है, शुरू में देखिए लिखा है नो फंक्शन, मतलब कोई भी फंक्शन यूज़ नहीं करना चाहते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद एवरेज का अगर आप सीक्वल यूज़ करना चाहते हैं तो AVG आप लिखेंगे, ये आपको जितने भी फील्ड हैं उसके हिसाब से एवरेज आपको निकाल के दे देगा। ये काउंट है, तो अगर ये क्या करेगा, जितने भी रिकॉर्ड्स है आपको 1 by 1 काउंट करेगा ये। लेकिन काउंट दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट होता है आपका काउंट स्टार और दूसरा होता है काउंट फील्ड नेम। अगर आपने यहाँ पर काउंट स्टार का यूज़ किया, इसका मतलब सभी रिकॉर्ड्स को आप देखना चाहते हैं, और अगर कोई नल वैल्यूज़ है यानी ब्लैंक वैल्यूज़ कोई हैं, कोई ब्लैंक छोड़ा है आपने, उसको भी काउंट करेगा ये। लेकिन अगर आपने यहाँ पर काउंट आपने लिखा और फील्ड में, तो केवल उस फील्ड के रिकॉर्ड्स को ही आपको वहाँ पे दिखाएगा और नल वैल्यूज यहाँ पे नहीं रहेंगी, नल वैल्यू काउंट नहीं होंगी। तो दोनों में मेन डिफरेंस है, इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। काउंट स्टार में नल वैल्यूज काउंट होती हैं, ठीक है, और दूसरे में नहीं होती हैं। मैक्सिमम जानते ही हैं, हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए उस फील्ड में, मिनिमम लोएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए, सम जोड़ने के लिए। ग्रुप का मतलब क्या हुआ कि अगर आपको एक जैसा फील्ड, अगर एक जैसी वैल्यू आपको मिल जाती है, सबको अगर ग्रुप में करना चाहते हैं, ग्रुप में रिकॉर्ड आपको जानना चाहते हैं, तो उसको भी हम ग्रुप फंक्शन से यूज कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर, इट ग्रुप्स क्वेरी डेटा एज पर द सेलेक्टेड फील्ड नेम। जो फील्ड नेम आपने सेलेक्ट किया है उनको क्या करेगा, जो एक जैसा होगा ग्रुप कर देगा ये, ठीक है। फंक्शंस आर एग्जीक्यूटेड एज पर द स्पेसिफाइड ग्रुप।
ठीक है, इट ग्रुप्स द रिकॉर्ड दैट हैव सेम वैल्यू एंड रिटर्न्स द समरी रोज। ठीक है, यानी कि जो एक जैसी वैल्यूज हैं उनको इकट्ठा करेगा और आपको दे देगा, समरी आपको दे देगा ये। तो ये रहा आपका ओवरऑल आपके इतने फंक्शंस जिनके बारे में हमने अभी अभी समझा। अब हम इसको प्रैक्टिकली भी कर लेते हैं, हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर दो अलग अलग हम टेबल का यूज करेंगे। हम कौन कौन से टेबल का यूज करेंगे? ओके, I just want to reconfirm that we are not going to use two tables because we did not have the relationship required here. Okay, we will just require only one table here. Okay, so मैंने एक टेबल मैंने आपके लिए बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये मैं टेबल पे गया और टेबल पे मैं दिखा देता हूँ आपको। ये रहा प्रोडक्ट टेबल, और इसको जब मैंने डबल क्लिक किया तो इतनी सारी चीज़ें हैं। प्रोडक्ट की आईडी, नेम, क्वांटिटी, परचेज प्राइस और सेल प्राइस, इतनी सारी चीज़ें हैं। और टोटल मैंने 10 आइटम यहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है यहाँ पर। ठीक है, ये रहे आपकी टेबल। और अब हम इसको बंद कर देते हैं और इसी टेबल पे हम काम करेंगे, हम इसी टेबल पर। तो मैंने क्या किया, क्रिएट टेबल इन डिज़ाइन व्यू पे क्लिक किया। ठीक है, फिर इसके बाद ये माफ़ी चाहूँगा मैं, मुझे क्वेरी में जाना है। क्वेरी पे जाने के बाद क्रिएट क्वेरी इन डिज़ाइन व्यू में गए। फिर इसके बाद टेबल को ऐड कर लिया हमने, इसे क्लोज कर देते हैं। ये टेबल ऐड हो गया। टेबल ऐड होने के बाद अब हम एक एक करके यहाँ पे फील्ड को सेलेक्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट आईडी ले लिया हमने, नेम ले लिया हमने, नेम के बाद यहाँ ले लिया क्वांटिटी ले लिया हमने, क्वांटिटी के बाद हमने ले लिया परचेज प्राइस ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, परचेज प्राइस ले लेते हैं। ठीक है, और इसके बाद अगर हमें कोई रिजल्ट चाहिए तो वो रिजल्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पे टेबल का नाम हो गया यहाँ पर। और अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फंक्शंस का यूज़ करना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ फंक्शन आपको यूज़ करना है वहाँ वहाँ आपको ये सब काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले अभी जो हम करेंगे बिना फंक्शन के करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। जैसे अभी जो आप यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, आप यहाँ पर एक नई फील्ड को बनाएंगे। ठीक है, वहीं पर फील्ड का जो नाम होगा वही एक्सप्रेशन आपको यहाँ मेंशन करना है। और जब आप यहाँ पर रन क्वेरी करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब जहाँ पर इस समय कर्सर है यहाँ पर आपको क्या लिखना है, एक्सप्रेशन लिखना है। ठीक है, तो एक एक्सप्रेशन लिखने का एक प्रॉपर सिंटेक्स होता है, उस सिंटेक्स को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे आप सोच रहे हैं यहाँ पर कि आपको यहाँ पर निकालना है टोटल कॉस्ट, आपको निकालना है कि टोटल हमारा कितना खर्च आया हमारा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो आपको करना क्या पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए आपकी पेंसिल 10 है आपकी और एक पेंसिल की कीमत 5 रुपये है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करते हैं हम, एस्टेरिस्क साइन का यूज़ करते हैं हम। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को लिखना कैसे है ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ मैं। देखिए कैसे लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर लगाइए डबल कोटेशन और यहाँ पे लिख दीजिए आप जो आपका टेबल का नाम है पहले वो लिखिए, फिर इसके बाद डॉट, फिर इसके बाद डॉट, फिर से डबल कोटेशन। और यहाँ पर अब आप क्या करना चाहते हैं, क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, क्वांटिटी। ध्यान रहे जिस तरीके से आपने एट्रीब्यूट का नाम लिखा है बिल्कुल वैसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, हमारा एक एट्रीब्यूट का काम खत्म हो गया और अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे। फिर से डबल कोटेशन और फिर से प्रोडक्ट, आपका जो टेबल का नाम है ये प्रोडक्ट, ये आपका टेबल का नाम, ब्रैकेट, डॉट लगाना पड़ेगा आपको। डॉट के बाद अब हम दूसरे एट्रीब्यूट का नाम, तो हम परचेज प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे, हम परचेज प्राइस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, परचेज अंडरस्कोर, ठीक है, प्राइस। यहाँ पर हम इसको अब हम लगा देंगे डबल कोटेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जितना भी लिखा मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोडक्ट, मैंने कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है, डॉट लगाया है। फिर इसके बाद क्वांटिटी, ये भी आपका कोटेशन के अंदर रहेगा, डॉट लगाना पड़ेगा। फिर इसके बाद यहाँ पे लगा, फिर आपका स्टार लगाया, फिर प्रोडक्ट यानी कि टेबल का नाम, डॉट, उसके बाद एट्रीब्यूट। तो यहाँ पर एक सिंटेक्स जो जनरेट हो रहा है कि टेबल नेम डॉट एट्रीब्यूट नेम। ठीक है, अगर आपको यूज करना हो तो, ठीक है ना। तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। अब हमने ये लिख दिया है, अब हमने इसको कर दिया विजिबल, ये हो गया आपका टेबल का नाम। और अब हमने रन क्वेरी किया है यहाँ पर। अब देखते हैं रिजल्ट आता है कि नहीं। ये देखिए यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, हम एक बार चेक कर लेते हैं। क्वांटिटी है 500, प्राइस है यहाँ पर आपका ये, ठीक है।
लेकिन हमें अभी जो एग्जैक्ट आंसर है वो हमें नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। इट मीन्स वी हैव मेड सम काइंड ऑफ मिस्टेक हियर, लेट मी चेक। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू द बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर डिफाइनिंग द, फॉर राइटिंग द एक्सप्रेशन इन द फील्ड। ओके, क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर सिंपल लिखिए जो आपका एट्रीब्यूट का नाम है। मैंने लिखा है यहाँ पर परचेज अंडरस्कोर प्राइस, ठीक है। इसके बाद लगा दिया मैंने स्टार, ठीक है। स्टार के बाद अब आपको क्या लिखना है, मल्टीप्लाई करना है क्वांटिटी से, ये मैंने लिख दिया क्वांटिटी, ठीक है। फिर इसके बाद ये आपका हो गया और यहाँ पे मैंने कर दिया विजिबल। अब हम रन करते हैं यहाँ पर, देखिए रन करके आपको मिल गया, आपको डेटा मिल गया यहाँ पर, ठीक है ना। ये आपको देखिए 500 इंटू 10 दैट इज 5000, हर एक चीज़ का यहाँ पे आपको मिल गया ये, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मल्टीप्लाई के अलावा कोई और ऑपरेटर आप यूज़ करेंगे तो भी आपको आंसर मिलना ही मिलना है, लेकिन सिंटेक्स याद है, तरीका क्या है लिखने का ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए इसी के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। ये मैं इसको हटा देता हूँ फिलहाल में, ठीक है। रिफ्रेश कर दिया, देखिए मैंने रिफ्रेश कर दिया। एक बार और भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने लिखा है यहाँ पर परचेज अंडरस्कोर प्राइस, ये हो गया एट्रीब्यूट का नाम, एस्ट्रिक क्वांटिटी, एंटर मैंने कर दिया और ये मैंने रन कर दिया। ये देखिए आपके सामने रिजल्ट आ गया ये, ओके। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ फंक्शंस को भी देख लेते हैं, हम किस तरह से फंक्शंस को यूज़ करने हैं हमें, ठीक है। ये भी बहुत आसान है, बहुत ही ईजी है आपके लिए, ठीक है। चलिए देखिए, अगर आपको सम करना है कि सबका कैसे हमारा आएगा ये, ठीक है, तो अब आप जाइए यहाँ पर, अब आप क्या करेंगे, फंक्शन वाले क्राइटेरिया में जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इतनी तरह के फंक्शंस यहाँ पर हैं। यहाँ पर अगर आपको सम करना है तो सम आपको मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे एट्रीब्यूट आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। एट्रीब्यूट कोई बना नहीं है इस तरह का, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यहाँ पर SUM, सम क्या टोटल लिख देता हूँ मैं। अब मैं देखता हूँ यहाँ पर क्या हमारे सामने रिजल्ट आता है, एरर, ठीक है, क्योंकि टोटल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, टोटल यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता यहाँ पर, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं। अब अभी भी देखिए गलती हो रही है ये, ठीक है। तो आपको इस तरह का काम आपको नहीं करना है, ठीक है ना, इस तरह का काम नहीं करना है। प्रॉपर जो सिंटेक्स है उस सिंटेक्स का हम यूज करेंगे यहाँ पर, ओके। चलिए देखते हैं कैसे यूज करना है आपको। चलिए स्टूडेंट्स, पहले हम क्या करते हैं, ये जो PID है, ठीक है, प्रोडक्ट की ID है, एक बार हम इसको काउंट करवा लेते हैं। तो यहाँ मैंने लिख दिया काउंट, नेम, ठीक है, नेम को छोड़ देते हैं, कुछ नहीं करेंगे इसमें हम। फिर इसमें हम देख लेते हैं कि क्वांटिटी में मैक्सिमम क्वांटिटी किसने मांगा है, जो मैक्सिमम क्वांटिटी है वो किस चीज़ की है ये। फिर इसके बाद यहाँ में देख लेते हैं कि लोएस्ट प्राइस किस चीज़ के लिए है, किस प्रोडक्ट के लिए है, ठीक है। चलिए क्लिक करके देखते हैं क्या आंसर आता है। यहाँ भी देखिए कुछ गलती हो रही है, नॉट एन एग्रीगेट फंक्शन, ओके कर देते हैं यहाँ पर। ओके स्टूडेंट्स, right now I have changed the table here and the name of the table is student marks, okay, and here we are able to more understand, okay, हम यहाँ पे ज़्यादा समझ सकते हैं यहाँ पर कि अगर हम नंबर्स का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो फंक्शंस को यूज़ करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि अगर हम टेक्स्ट यूज़ करेंगे थोड़ा सा फंक्शन के हमें और भी डीप में स्टडी करना होगा हमें, ठीक है। लेकिन क्लास 10th में फंक्शंस के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर केवल हम यहाँ पर कुछ ऐसे टेबल्स का यूज़ करेंगे जिसमें कि नंबर्स ज़्यादा हों। तो मैंने स्टूडेंट मार्क ले लिया और यहाँ पर हमने फील्ड का नाम सेलेक्ट कर लिया यहाँ पर, ठीक है। ये आपका प्रॉपर टेबल का नाम हो गया। इसके बाद अब हम फंक्शन का यूज़ करेंगे, जैसे यहाँ पर सबसे पहले स्टूडेंट के मार्क्स को हम काउंट करा सकते हैं। यहाँ पर इंग्लिश में किसका मैक्सिमम है ये हम देख लेते हैं, हिंदी में कौन मिनिमम लाया है ये भी देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह करके हम देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पर टोटल देख लेते हैं कि टोटल किसका है यहाँ पर,
तो टोटल के लिए मैंने क्या किया, सम फंक्शन लगा दिया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं यहाँ पर क्या हमें आंसर मिलता है ये। ठीक है, चलिए मैंने क्लिक कर दिया। क्लिक करके देखिए कुछ प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर अभी भी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको नो फंक्शन कर देता हूँ मैं। अब हम दोबारा चेक करेंगे, अभी भी देखिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। ओके स्टूडेंट, देखिए हमें यहाँ पे समझना कैसे है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये मैंने सिंपल एक क्वेरी चला दी यहाँ पर और मुझे SID आ गया, इंग्लिश और हिंदी के मार्क्स आ गए यहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है यहाँ पर, जैसे मान लीजिए काउंटिंग करनी है हमें, तो काउंटिंग के लिए जैसे मैंने क्या किया यहाँ पर काउंट फंक्शन ले लिया। अब मैं पहले इतना करके देख लेता हूँ। पहले मैंने क्लिक किया, अभी भी देखिए कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है ये। ठीक है, कोई बात नहीं, काउंट नहीं हो रहा है ये। मैं यहाँ पर मैक्सिमम ये आपका ले लिया यहाँ से मिनिमम। ठीक है, अब हम चेक कर लेते हैं एक बार और। ये देखिए डेटा आपके सामने आ गया, यानी कि टोटल हमारे पास 10 चीज़ें हैं जो आपके जो स्टूडेंट के यहाँ पे IDs हमारे पास हैं, उनमें से मैक्सिमम इंग्लिश में 98 है और मिनिमम 55 है। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो प्रॉपर डेटा है वो आपने यहाँ पर समझ लिया, देख लिया है आपने। ठीक है, तो इस तरीके से अब आप फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हैं आप। ठीक है, अब हम एक लास्ट टॉपिक हम देखने जा रहे हैं जिसका नाम है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप को हम कैसे यूज़ करेंगे ये भी हम समझ लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, अब हमें क्या समझना है, ग्रुप फंक्शन समझना है। तो मैंने टेबल यहाँ पे एक नई टेबल ले ली है जिसका नाम क्या है, स्टूडेंट इन्फो। इस टेबल को लिया है और इस टेबल में 2 फील्ड को सेलेक्ट किया मैंने, एक का नाम है नेम और दूसरे का नाम है सिटी। ठीक है, और यहाँ पर टेबल नेम आ गया, यहाँ पर विजिबिलिटी मैंने बता दी यहाँ पर। अब हमें फंक्शंस को यूज़ करना है यहाँ पर। ठीक है, तो फंक्शन को यूज़ करते समय हमें एक चीज़ का ध्यान देंगे यहाँ पर कि सबसे पहले हम ये बताएंगे यहाँ पर कि जैसे मान लीजिए हमें अगर काउंट करवाना है तो कि हमें किसके साथ इसको ग्रुप करना है, किसके साथ हमें ग्रुप करना है। जैसे देखिए दिल्ली दिल्ली कई जगह यहाँ रिपीट हो रहा है ये। ठीक है, तो जो सेम चीज़ें वो एक जगह हो सकती हैं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले इनको मैंने काउंट कराया, पहले इनको मैंने यहाँ पर नेम मैंने काउंट करा दिया। ठीक है, नेम के बाद मुझे क्या करना है, सिटी को उनके साथ ग्रुप करना है, जो एक जैसे हैं वो एक ग्रुप में आ जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्रुप फंक्शन यहाँ लगा दिया। अब मैं यहाँ पर क्लिक करके देखता हूँ कि डेटा आता है कि नहीं आता है। ये मैंने क्लिक किया, ये देखिए। ठीक है, तो आपका देखिए सिटी दिल्ली वाले कितने हैं, 4 हैं, पुणे वाले 3 हैं, नोएडा वाले 3 हैं यहाँ पर। ठीक है, सो आई थिंक स्टूडेंट टिल नाउ whatever I am trying to deliver here, each and everything is crystal clear. But students, if you feel that you have any kind of doubt, any kind of problem, you can get in touch with me. Okay students, so don't worry about that, I am always with you. So students, now it's time to finish up this video and we'll meet in next video. And in next video, that's the most important thing for you, because we are going to study the SQL, that is the structure query language. How we are going to perform this, how we are going to use this, each and everything is very much important for you, right? Okay, so one more time, thank you so much for watching this video. We'll meet in next video.